Hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. So while preparing for UPSC, if there's one piece of advice you'll hear from every coaching institute, mentor and yes, every single topper, it's this. The main syllabus is your Bible from day one of your preparation to the day you sit in that interview chair. The syllabus is your ultimate guide. Hence we are told to memorize it word by word, every line, every phrase, every comma. But here's the contradiction. The same syllabus that is supposed to guide us ends up confusing every aspirant, whether being a beginner or someone who has given even a single attempt. But why? Because while the syllabus definitely tells us what to study, it says nothing about how deep to go, where to stop, what dimensions to explore, and most importantly, what not to read. Therefore, a syllabus document that should bring clarity ends up creating chaos and confusion. It's vague, it's open-ended, it's difficult to decode. And that's why it's end up pushing many aspirants away from it altogether. And instead of decoding syllabus ourselves, we start following whatever coaching institutes tells us blindly, mechanically and unquestionably. And that's where the problem begins. We start viewing UPSC not from our own understanding, but from the filtered lens of coaching institutes. Their material becomes a Bible, their test series becomes a measure of performance, and their courses define our journey. Slowly, we stop thinking for ourselves, we stop asking why, and we become dependent not just on their notes but on their direction. Let me be very clear here that coaching is not the villain. But when you don't know how to use it, you become the product in a system that is designed for profit. And I say this with full responsibility because I have been there. I have followed the coaching rat race, I have ignored the syllabus, assumed that they know better, and placed my entire preparation in someone else's hand. The result was confusion, fear, and self-doubt. Because when you don't understand the syllabus for yourself, when your preparation depends entirely on someone else's material, you'll never feel confident in your own hard work. And that is a clear recipe for a complete failure. Because this exam doesn't reward dependency. It rewards understanding, ownership, clarity. So today, with the experience of 4 mains and 2 interviews behind me, I want to help you break it down line by line, word by word, until what's called the most difficult syllabus becomes your biggest strength. In this session, I'll cover everything you need to approach GS Paper 1 with precision. The breakdown of the syllabus into micro topics, so you just don't read, you understand. The basic minimum sources, no clutter, no confusion. Proof of interlinkages between GS papers because this exam is about integration, and note-making tips that are doable, repeatable and yours to keep. I'll decode the GS Mains Paper 1 pattern, not to overwhelm you, but to reclaim your preparation with clarity, with confidence, and most importantly, with your own understanding. Because it's time we stop outsourcing our thinking and start thinking basic. And we will do the same for rest of the mains papers in respective separate videos. Okay? But yes, before we move ahead, we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही time हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. ठीक है? तो चलो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जीएस पेपर 1 के बारे में. यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, जिसको सिर्फ लाइंस में डिवाइड कर दिया है. इसका एक प्रॉपर माइक्रो टॉपिक्स में डिवीजन नहीं बताया है. उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं. बेसिकली सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे जीएस 1 का एक ओवरव्यू भी दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज कि कितने एवरेज मार्क्स का वेटेज किस सब्जेक्ट से यूपीएससी पूछता है आउट ऑफ 250 मार्क्स इन दिस पेपर.
आर्ट एंड कल्चर देखो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का यूपीएससी पूछता है, तो वहीं मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ 25 मार्क्स का पूछता है आउट ऑफ 250। हम क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ही टाइम लगाते जाते हैं, पूरे टाइम हम सोसाइटी जैसे टॉपिक को इग्नोर करते हैं, बिकॉज सोसाइटी को देखो 100 मार्क्स को यूपीएससी पूछता है इस पेपर में, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हमारा पूरा दिमाग ना मॉडर्न हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे चलता रहेगा। तो आप ये भी चीज समझो कि आपको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है अपनी मेंस की प्रिपरेशन को। ठीक, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछता है, हार्डली एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली दोनों ही एरिया से 10 मार्क्स का वेटेज रहता है ऑन एन एवरेज। तो वहीं ज्योग्राफी भी अच्छा खासा यूपीएससी पूछता है, 75 मार्क्स आउट ऑफ 250 आपको ज्योग्राफी से मिलेगा इन दिस पेपर। अब ये जो यहाँ पे सेकंड कॉलम है, मैंने यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी ने इन सब्जेक्ट से कितने पूछे वो यहाँ डिफाइन किया हुआ है, और साथ के साथ यहाँ पे पैटर्न भी बताया हुआ है कि किस तरीके से यूपीएससी ने चेंज किया है कि टिल 2014 यूपीएससी कितने क्वेश्चंस पूछता था, कितने मार्क्स के, कितने वर्ड्स में, फिर उन्होंने नेक्स्ट 2 इयर्स 15-16 कुछ चेंजेस किए, एंड एट प्रेजेंट अब ये चल रहा है कि 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस 10 मार्कर्स के होते हैं 150 वर्ड्स के, एंड बचे हुए 10 क्वेश्चंस 15 मार्कर्स के होते हैं 250 वर्ड्स के। तो ये तो आपका एक पूरा GS1 का ओवरव्यू हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिकोड करना। वी विल स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ पे जो हमें सिलेबस में सिंपल बस एक ही लाइन दी है आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग, दैट इज सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब यहाँ पे कीवर्ड्स को फोकस करो, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, हमें इन तीनों को कवर करना है। लेकिन अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि सिर्फ इन तीनों को कवर करने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये जो तीनों एरियाज है ना, इंडियन आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इसमें एग्जैक्टली हमें कौन से माइक्रो टॉपिक्स या सब टॉपिक्स को कवर करना है उसको मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया है। इसका आप अपने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊं तो यहाँ देखो 2024 में यूपीएससी ने पूछा है कंट्रीब्यूशन ऑफ पालवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। आर्ट एंड लिटरेचर, नॉट ओनली लिटरेचर। अब यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर दोनों को क्लब जो यहाँ पे कीवर्ड्स थे, दोनों ही कीवर्ड्स को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू वन सिंगल डायनेस्टी। तो वहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें जो 2024 में ही पूछा था अगेन, चोलास की रिगार्डिंग, दैट दे आर रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक, अब उसके रिगार्डिंग हमें कमेंट करना है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हम सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज अपनी वहां पे जाके नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आप सिर्फ वो करने वाले हो तो वहां पे आपको कभी एज मिलेगा ही नहीं इन मेंस, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे ही नहीं। सो यू हैव टू बिल्ड अप द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सच क्वेश्चंस ऑल्सो। हमें हिस्ट्री में सोच के लगता है कि यार इसमें क्या कंसेप्चुअल एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, टाइमलाइन है, उसको पढ़ो, उसको समझो कि कौन सी डायनेस्टी किस काम के लिए पैट्रोनेजेस देते थे, उनका क्या आइडियोलॉजी था, क्या माइंडसेट था, उसी को रिगार्डिंग आप यहाँ पे इसको आंसर कर पाओगे। एंड इसको आंसर करने के लिए आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर नहीं बल्कि आपको एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि उसमें हमें एग्जैक्टली कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है, जिससे आपका मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों का ही इंटीग्रेटेड वे में पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें मेन फीचर्स बताने वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक से पढ़ के आंसर ही नहीं कर पाओगे यार। इसके लिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए कि वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था, हड़प्पन से वो कैसे डिफरेंट थे, लेटर वैदिक से वो कैसे डिफरेंट थे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड यहीं पे देखो इसी क्वेश्चन में इंट्रा लिंकेज की भी बात हुई है। आगे का पार्ट कहता है दैट डू यू थिंक दैट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। अब इसी पेपर में सोसाइटी का एक सब्जेक्ट अलग से है, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, दोनों ही सब्जेक्ट्स को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछ लिया एज अ इंट्रा लिंकेज। तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। अगर हमें इस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, उसके लिए हमें सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली चाहिए। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो उसके लिए रिगार्डिंग गवर्नमेंट की 3 ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जिसमें से 2 तो ये एनसीईआरटीज हो गई, क्लास 11th एंड 12th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और ये लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इसके अलावा वेबसाइट है सीसीआरटी वाली, उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, वहां पे जो भी हमें विजुअल्स मिलते हैं आर्ट फॉर्म्स के रिगार्डिंग, उसको ध्यान से देखो, समझो, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहे। एंड स्टैंडर्ड बुक में नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है उसको फॉलो करना है, लेकिन उसको भी आपको सब कुछ पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ने हैं फॉर प्री एंड मेंस बोथ। अब ये कौन से पढ़ने हैं, डे वाइज इसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो हर सब्जेक्ट में एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी इंटीग्रेटेड वे में, प्री प्लस मेंस के हिसाब से। ठीक, इसके अलावा अगर आपको जरूरत लगती है तो यस डेफिनेटली यूज गूगल की। अगर कोई भी आपको लगता है टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है इन डेप्थ में, तो उसको आप गूगल करो सिंपल और आगे लिख दो यूपीएससी टॉपिक के नाम के बाद, तो आपको स्टार्टिंग के जो 2 लिंक्स मिलेंगे ना, बस उसी को जो है पढ़ो, उससे आपका काम हो जाएगा। अच्छा, पढ़ते टाइम अप्रोच क्या रखनी है कि आर्ट एंड कल्चर से पहले एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ लेना है,
पढ़ने के बाद एनालाइज करना है प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस, ताकि हमें समझ आ सके कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि हमें कितना फैक्चुअल कंटेंट पता होना चाहिए, कितना एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए हमें पढ़ते टाइम। जो आपको हेल्प करेगा, जो मैंने सबसे पहली चीज आपको ऑलरेडी अभी बताई, कि जब भी आप पढ़ो कोई भी चीज ना हिस्ट्री में, उसको विजुअली अगर आप देख सकते हो तो उसको डेफिनेटली देखो। कोई साइट है या कोई डांस फॉर्म है या कोई टेम्पल है, उसको अगर आप फोटोज देखोगे या वीडियोस देखोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रहेगी। एट द सेम टाइम आप डायग्राम्स का यूज करो, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको अगर आप अपनी आंसर आईडी में इंक्लूड करोगे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बात रही नोट मेकिंग की, कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं है, नोट्स कैसे बनाए, तो यार देखो सिंपल स्कूल में ना हम इन कीवर्ड्स को पढ़ते थे और उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रिपेयर करते थे, वही कीवर्ड्स काम आते हैं। मैंने सही बता रही हूँ, मैंने कोचिंग्स भी ज्वाइन करके देख ली है, मैंने टेस्ट सीरीज भी लगा के देखी है अपने यूपीएससी जर्नी के दौरान, एंड आई हैव रियली फाउंड दैट द वन थिंग दैट यूपीएससी वांट्स अस इज दैट वी शुड थिंक बेसिक व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम। ठीक, तो ये जो डायमेंशंस हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, सिर्फ इनको आंसर करो। हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, सब टॉपिक जो पढ़ रहे हो, उसको अगर आप इस रिस्पेक्ट में सिर्फ आंसर कर लोगे ना, एक पेज पे आपके नोट्स बन जाएंगे हर एक सब टॉपिक के, एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एंड इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल माइंडेड। ठीक है, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ देखो मैंने सारे सब टॉपिक से लिस्ट कर दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं। पढ़ने कहाँ से हैं, अगेन ये देख लो, हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ऑथेंटिक सोर्स, ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा एंड द न्यू एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाली, दोनों पढ़नी है। अगर आप वाजीरामन रावे की, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बताती हूँ कि वो फ्री में उनकी वेबसाइट में यूपीएससी क्वेस्ट नोट सेक्शन के अंडर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की बहुत अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पड़े हुए हैं। अगर आप उसको रीड करते हो तो उसके साथ आप सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आप वही गूगल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन अप्रोच क्या रखनी है, टाइमलाइन और एवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को समझो अच्छे से। ऐसा नहीं है, रटना नहीं है, टाइमलाइन को समझो, कि चेंजेस समझो, कि कैसे हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सोसाइटी डिफरेंट थी वैदिक से, वैदिक कैसे डिफरेंट थी लेटर वैदिक से। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे आपको ज्यादा ध्यान रहेगा, और जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो फोकस करो सोशल, इकोनॉमिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स को, एवोल्यूशंस को वाइल रीडिंग, बिकॉज इन पॉइंट्स को फोकस करो, आराम से आप आंसर भी लिख पाओगे, और प्रीलिम्स के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, कि हमें समझ नहीं आता कि कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी आंसर कर पाओगे। सेम गोज फॉर मेडिवल हिस्ट्री, यहाँ पे सब टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट व्हाइल वाचिंग द वीडियो ले सकते हो, अदरवाइज मैं इनका टेलीग्राम पे ही इन कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज अपलोड कर दूंगी पीडीएफ, थिंक बेसिक फोक चैनल पे टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें तो यहाँ देखो वही ओल्ड एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा वाली, एंड न्यू एनसीईआरटी उसके साथ पढ़नी है विद गूगल, एंड सेम अप्रोच फॉलो करनी है जो एंशिएंट हिस्ट्री में बताई, लेकिन यहाँ पे एक डिमेंशन और ऐड कर लेना, दैट यू हैव टू फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स एज वेल, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं टर्मिनोलॉजी के फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री, दैट टू रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। तो इस तरीके से जो पूरा हमारा एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर है वो पूरा कवर में हो गया है। पूरा अच्छे से मैंने बता दिया कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या क्या सब टॉपिक्स इसके लिए गो थ्रू करने हैं। Okay, so now let's discuss about the next subject within the GS paper 1, that is the modern history. अब modern history के regarding there are the two syllabus lines mentioned in GS mains paper 1. पहला है the modern Indian history from about middle of the 18th century until the present significant events, personalities and issues. तो वहीं the second syllabus line in modern history is with respect to the freedom struggle, its various stages, important contributors or the contributions from the different parts of the country. एंड इन दोनों ही एरियाज पे यूपीएससी ने अच्छे से इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर इन दोनों ही सिलेबस लाइंस को मैं बाइफरकेट करूं तो बेसिकली जो ये सबसे पहला कीवर्ड है ना, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी मीन्स दैट from 1750 onwards. So that is why the first micro topic comes is, that is the important events which happened between the 1750s and 1857, जिसके रिगार्डिंग ये सारे मैंने यहाँ पे सब टॉपिक्स लिख दिए हैं जो आपको स्पेक्ट्रम में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से वहाँ कवर्ड है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके तुरंत बाद ही नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में, फ्रॉम 1858 टू 1905 वाला पीरियड, उसके रिगार्डिंग सारे सब टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद और आगे मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उसको हमें कवर करना है। उसके अलावा हमें जो मास नेशनलिज्म का पीरियड है, गांधी जी की एंट्री हो जाती है, एंड उसके बाद टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये सारे सब टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया है कि क्या क्या कवर करना है। ठीक, तो इसका अगेन मैं बोल रही हूँ साथ के साथ या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वेट करो, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, उसको डाउनलोड कर लो।
रीड इट अकॉर्डिंग टू ओनली दी सब टॉपिक्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर, बिकॉज ये जो सब टॉपिक्स है ना, ये सारे अभी के नहीं, सिंस लास्ट 20 ईयर्स जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मेंस बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू प्री, उस हिसाब से मैंने सारे के सारे सब टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बिकॉज अगर आप रिसेंट पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी क्या करता है, प्री में पूछे हुए क्वेश्चन को घुमा करके मेंस में दे रहा है, और मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन को घुमा करके प्री में पूछ ले रहा है ऑब्जेक्टिव तरीके से। So during my preparation, I have worked and prepared these subtopics as per these last 20 years prelims and mains. तो इसको बहुत ध्यान से इसी हिसाब से प्रिपेयर करना, ठीक। अगर मैं बात करूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखो 2024 में यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग। देखने में ये बहुत इजी लग रहा है कि हाँ क्विट इंडिया से क्वेश्चन आया, बट सी द क्वेश्चन, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, What were the events behind that led to this Quit India movement? Quit India movement में क्या हुआ, किसने क्या किया, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कौन से रीजंस थे जिस वजह से फाइनली डिसाइड हुआ कि अब तो हमें क्विट इंडिया मूवमेंट लाना है, उसकी बात हो रही है। अगेन दैट आई एम सेइंग कि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, इनफैक्ट इन द हिस्ट्री पोर्शन इटसेल्फ। यहाँ पे तो क्विट इंडिया के रिगार्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स थे विच लेड टू इट, उसके बारे में पूछा है। 2021 में मॉडरेट्स के रोल के बारे में पूछा था फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, अगेन एन एनालिटिकल क्वेश्चन। एंड सेम तरीके से नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर आई थिंक 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। द बैकग्राउंड पार्ट, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द मूवमेंट, ये मूवमेंट में क्या हो रहा है, दे आर आस्किंग अबाउट द बैकग्राउंड कि कैसे हुआ, वो हमें पता होना चाहिए। तो सिमिलरली 2023 में क्वेश्चन देखो, पर्सनैलिटीज के ऊपर क्या क्वेश्चन था कि हमें डिफरेंस बताना है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की अप्रोचेस के बीच में विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अगेन अब ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने अच्छे से पर्सनालिटीज को पढ़ा है, उनके काम को समझा है, उनकी आइडियोलॉजी को समझा है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स यू कैन नॉट आंसर क्वेश्चन लाइक दिस, और वहां पे क्या होगा ना, पैनिक हो जाएगा अगर आपको, इफ यू हैव नॉट रेड इट इन डिटेल, इन डेप्थ, इन कंसेप्ट्स, इन एनालिसिस, ठीक। सिर्फ रोड लर्निंग से यहाँ काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए सोर्स कौन सा फॉलो करना है, द वन एंड ओनली सोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई फील इज स्पेक्ट्रम। ये आपको प्री प्लस मीन्स दोनों में हेल्प करेगा। इसके अलावा कोई भी आपको कोई एनसीईआरटी या बिपिन चंद्रा की जो एक बहुत ही थिक बुक आती है नॉवल जैसी, उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस स्पेक्ट्रम बुक इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। अप्रोच क्या रखनी है कि जब भी आप पढ़ोगे आपको फोकस करना है दैट व्हाट आर द कॉजेज दैट लीड्स टू एन इवेंट। जैसे यहाँ ऊपर अभी क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर पूछ लिया था, उसके साथ साथ फिर क्या इम्प्लीकेशन या कॉन्सेज हुआ उस पर्टिकुलर इवेंट का, आगे क्या हुआ, जैसे कॉलोनियल पॉलिसीज का ट्राइबल पे क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, कैसे ट्राइबल्स ने उनके ऑपरेशन को रिटेलिएट किया, वो हमें पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर हमने देखा कि सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं, एक ही क्वेश्चन में वो दो अलग अलग पर्सनालिटीज को दो अलग अलग डिमेंशंस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहे हैं। कॉलोनियल पॉलिसीज तो एक इंपॉर्टेंट एरिया हमेशा से रहा है इन प्रीलिम्स एज वेल। तो जब आप इसको पढ़ रहे होगे ना, तो जब भी आप पढ़ोगे, जिस भी सब टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, या सब टॉपिक नहीं, चलो आपने एक टॉपिक कवर किया, सपोज करो ये टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन वाला पार्ट फ्रॉम 1939 टू 1947, देन जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आप जाकर के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और देखो कि यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, क्या डिमांड है उनका इस पर्टिकुलर एरिया से। तो ये थॉट प्रोसेस आपको मेंस प्रिपेयर करते वक्त लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट फॉर मेंस ऑल्सो, बट रादर अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देखोगे ना, उसमें भी आपको सेम तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड वे में, आई मीन टू से, ठीक है। So now after modern history, let's discuss the next topic, that is the post independence India. अभी मैंने आपको बताया था कि दैट ऑलरेडी इसका वेटेज अराउंड 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज रहता है, यानी कि हार्डली लास्ट 5 ईयर्स में 1 to 2 क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस एरिया से पूछे हैं। सो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, सो वी हैव टू रीड हियर अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस, द कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब इन टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में, इन कीवर्ड्स के रिस्पेक्ट में आते हैं ये सारे सब टॉपिक्स, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कैसी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी। अब ये जो चीज़ें है ना, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अब आप ये देखो कि यही जो है जो मैं बात करती हूँ ना, इंटरलिंकेजेस अमंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इस एरिया से क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, बट लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जा सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सेम जीएस पेपर 1 में भी आएगा डायमेंशन में, और जीएस पेपर 2 या 3 में भी आएगा डायमेंशन में। इट ऑल डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। इसके अलावा आपको सोशल डायमेंशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे एडवांसमेंट हुआ, उसको भी इसमें कवर करना पड़ेगा। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए ये जो भी मैंने सब टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ने, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है।
अगर हम इसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि हमें असेस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये पूरा एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो इजीली आंसरेबल है अगर हम इन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाते हैं। लेकिन द क्वेश्चन कम्स कि अब ये जो भी सब टॉपिक्स है इनको हम प्रिपेयर किन सोर्सेज से करें, किस मटेरियल से करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो जो एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये मस्ट है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको जरूर पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द मेंस इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसे अलग से स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये विजन आईएएस का एक वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, पूरा एक बुकलेट आता है छोटा सा, बस इसको पढ़ लेना। इसको भी नहीं पढ़ना हो तो अप्रोच जो यहाँ लिखी है मैंने कि जो भी माइक्रो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए बस उनको पढ़ो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हार्डली आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, आई थिंक नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस जो है मिलेंगे लास्ट पूरे 10 to 15 ईयर्स में इस पर्टिकुलर एरिया से। सो उनकी थीम्स को बस कवर करो और इन माइक्रो टॉपिक्स को कवर करो। जो यहाँ नहीं दिया हुआ है उसको आप गूगल करके उस माइक्रो टॉपिक का नाम लिख करके सर्च कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक, तो इस तरीके से तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वेटेज हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा था कि नियर अबाउट ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का ही रहता है, यानी कि हार्डली 1 to 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, वो भी जरूरी नहीं कि हर साल पूछे। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा सिलेबस मेंशन्ड है यूपीएससी मेन सिलेबस में, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट्स फ्रॉम द 18th century such as the industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communalism, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा। अब यहाँ पे यही सारे कीवर्ड्स को उठा करके मैंने पूरा यहाँ पे ये सारे माइक्रो टॉपिक्स पे ब्रेक कर लिया है सिलेबस को। ठीक है, इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ध्यान से इनका फोटो लेते चलो, ताकि पढ़ते टाइम ना प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक टॉपिक को जब पढ़ने घुस जाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं जितना ना तो रिक्वायर्ड है, बिकॉज आप देख रहे हो दैट ऑन एन एवरेज हार्डली 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और ना ही आप उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे। तो इस ट्रैप में आप ना फंसो, इसके लिए सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। इनफैक्ट अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बात करूं ना तो देखो जस्ट 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग, दैट हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये क्वेश्चन आंसरेबल है अगर आपने पढ़ा है। ये सारे माइक्रो टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये देखने में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो टॉपिक्स लग रहे हैं, बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट ना तो आप एक दिन में 3-4 टॉपिक्स को निपटा सकते हो बहुत इजीली। इसमें मटेरियल भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2023 का भी अगर हम एक क्वेश्चन देखें जो एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने डेफिनेटली पूछा वर्ल्ड हिस्ट्री से, दैट वाज ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे वो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। अब ये एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने प्रैक्टिस किया। अगेन द यूपीएससी इज टेस्टिंग यू ऑन योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो इस चीज को समझो, मैं हमेशा हर जगह बोल रही हूँ, ये आपको अगर हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना देखने को, तो जस्ट माइंडेड कि आपको बाकी एरियाज में किस तरीके की मिल सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी हैज स्टार्टेड टू गिव सरप्राइजेस एवरी ईयर वेदर इन प्री और इन मेंस। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें तो अगेन इसमें कोई एनसीईआरटी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। विजन आईएएस का एक वैल्यू एडेड मटेरियल आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, बस उसे ही पढ़ो। उसके अलावा जरूरत लगे तो बस गूगल कर लो। अगेन मैंने तरीका बता रखा है कि स्टार्टिंग के 2 लिंक्स को ही आपको बस फोकस करना है, एंड अप्रोच आपको वही सेम रखनी है जो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए रखोगे, दैट आपको जो माइक्रो टॉपिक्स है वही प्रिपेयर करना है, एंड अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम्स के ऊपर आपको एक छोटे से नोट्स बनाने हैं। और नोट्स भी मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से बनाने हैं, जो कीवर्ड्स हमने बात की थी, दैट हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कम टाइम में कवर हो जाएगा। Now coming on to the most important part of the GS paper 1 syllabus, that is the Indian society, जो हमने देखा अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, that out of 250 मार्क्स 100 मार्क्स का यूपीएससी हर साल ऑन एन एवरेज पूछता है।
अब यहाँ पे GS1 के सिलेबस में सोसाइटी से रिलेटेड यूपीएससी ने हमें 4 सिलेबस हेड्स दिए हैं जिनको हम डिकोड करेंगे उसके सब टॉपिक्स में एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे इंटरलिंकेजेस के रिगार्डिंग। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस सिलेबस, दैट इज द सेलेंट फीचर्स हमें पता होने चाहिए इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के। अब यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी माइक्रो टॉपिक्स हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द करंट अफेयर्स, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द एनसीईआरटीज एज वेल कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फीचर्स हो गया इंडियन सोसाइटी के बारे में, चैलेंजेस क्या क्या हैं डाइवर्सिटी की, यूनिटी का कॉन्सेप्ट, प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट, फैमिली सिस्टम आ गया, एक्सक्लूजन का पॉइंट हो गया, ये सब हमें प्रिपेयर करना है। Coming on to the another syllabus head that is mentioned, that which is about the role of the women and women's organization, population and its associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. प्रॉब्लम्स भी बतानी है और हमें उसका रेमेडी भी पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं या क्या अच्छा चीज हो सकता है उसको डील करने के लिए। अब इससे रिलेटेड मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में मैंने सिलेबस को अलग अलग माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक कर रखा है। जैसे यहाँ पे रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए सारे टॉपिक्स, देन यहाँ पे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज के रिगार्डिंग हो गया, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ माइक्रो टॉपिक्स है स्पेशली बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आगे देखेंगे भी इसको। इसके अलावा व्हाट इज एल्स इज मेंशन्ड इन द सिलेबस इज द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है ये आपका जीएस पेपर 3 से ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जीएस पेपर 1 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी माइक्रो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे मेंशन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड देन द लास्ट सिलेबस व्हिच कम्स अंडर द सोसाइटी इज द सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जिससे रिलेटेड मैंने अगेन यहाँ पे माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक किया हुआ है। यू कैन डेफिनेटली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेकिन अब जो यहाँ पे मेजर बात आती है ना सोसाइटी से रिलेटेड, दैट इज अबाउट द इंटरलिंकेजेस, बिकॉज भर भर के इंटरलिंकेजेस यूपीएससी ने अलग अलग ईयर्स में किया है विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 1, 2 एंड 3। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो देखो 2024 में यूपीएससी ने रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, दैट व्हाट इज इट एंड हाउ सीरियस इज दिस इशू इन इंडिया। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली स्टेम होता है 2016 से, जहां पे यूपीएससी ने ऑलरेडी बेसिस ऑफ रीजनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था जीएस1 में। एंड 2020 में जीएस पेपर 3 में माइंडेड, अब ये क्वेश्चन आप देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी है, रीजनलिज्म हो क्यों रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द रीजन्स, उसकी वजह से ही हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है इन सर्टेन रीजन्स इन द कंट्री। अगर जीएस पेपर 3 में देखें कि हम स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से यूपीएससी ने पूछा था, सो लेट मी शो यू, दिस इज द जीएस 3 का ऑफिशियल सिलेबस। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे देखो ये मिलेगा, लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाया इसलिए यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी हो गया, लीडिंग टू रीजनलिज्म, लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो बेसिकली जीएस1 एंड जीएस3 में ये जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है और ये एक्सट्रीमिज्म का जीएस3 से पॉइंट है, ये इंटरकनेक्टेड है एंड यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज जब आप इसको आंसर करोगे ना, दैट हाउ सीरियस इज दिस इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, तब आपको यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द अर्बनाइजेशन। अब 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दैट डज अर्बनाइजेशन लीड टू सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर्स इन इंडियन मेट्रोपोलिस। अब देखो जीएस2 में 2017 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के ऊपर, कि ये एक बस मेयर शो पीसेस ही रह जाएंगे until unless they are backed by the political will, which is absolutely correct. अगर urbanization is one of the major causes of the marginalization of the poor, then we must be implementing the poverty alleviation programs in respect to these various Indian metropolises. लेकिन these becomes ineffective until unless there is a political will. Then 2023 में अगेन GS2 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा दैट स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज। जब तक अर्बन लोकल बॉडीज के पास पावर नहीं है, जो अर्बनाइजेशन से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है पुअर्स का, वो डील ही नहीं कर पाएंगे ना। तो बेसिकली अगर आप देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है कि अगर हम अपने GS1 के नोट्स बना रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन या रीजनलिज्म से रिलेटेड, तो जब हम GS पेपर 2 का वल्नरेबल सेक्शंस का टॉपिक कवर करेंगे या उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर अर्बन लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, या GS3 में मान लो हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिज्म के रिगार्डिंग, तो हमारे ये GS1 के नोट्स काम आएंगे ना। हमें इसीलिए इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करनी है और मेजरली इसलिए आपको हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स से। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सोसाइटी की हमने सब टॉपिक्स तो देख ली कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसको हम प्रिपेयर कहाँ से करेंगे,
उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि इसको आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से प्रिपरेशन करके काम नहीं चलेगा। जो बेसिक सी 2 क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ऑथेंटिक सोर्स है, उनको पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी बेटर, टू अंडरस्टैंड द सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, फैमिली सिस्टम, उसके लिए ये बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो। उसके अलावा जो विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है ना, सोसाइटी के रिलेटेड छोटा सा मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, उसको पढ़ो टू डेवलप द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप हर एक सब टॉपिक को ना गूगल पे जाकर के सर्च नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक ही जगह बहुत अच्छे से दिया रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली डेली न्यूज़पेपर्स, नॉट करंट अफेयर मैगजीन्स बट न्यूज़पेपर्स, बिकॉज न्यूज़पेपर से आपका अपना पर्सपेक्टिव बनेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से हम डेली न्यूज़पेपर को सिर्फ 1 से 2 घंटे के विदिन में सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्विज है उसको हम डेली कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन जस्ट विद इन 2 आवर्स। एंड माइंडेड इफ यू गिव दीज 2 आवर्स, सो इट विल नॉट हेल्प यू इन प्रीलिम्स बट इन मेंस एज वेल। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, करंट अफेयर मैगजीन आप उसको एज अ सब्स्टिट्यूट, एज अ समरी एंड ऑफ द मंथ में जरूर पढ़ो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट करके अपने आंसर्स की फ्रेमिंग आप कर लोगे ये मत सोचो, बिकॉज उसमें इतनी वेरिड न्यूज रहती है कि ना तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहने वाली है अनटिल एंड अनलेस यू रीड द न्यूज़पेपर, जहां पे एक न्यूज कम से कम 10 to 15 डेज आराम से चलती है। ठीक, अब सोसाइटी में पढ़ते टाइम फोकस आपको करना है क्रिस्प डेफिनेशंस पर, डेटा स्टैटिस्टिक्स पर, गवर्नमेंट की स्कीम्स और उसकी क्रिटिसिज्म पर, कॉजेज बिहाइंड द इश्यूज, हिस्टोरिकल एंड करंट एग्जांपल्स जो आपको न्यूज़पेपर से आराम से मिल जाएगा, एंड योर ओन पर्सपेक्टिव, योर ओन सजेशन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, टू अ पर्टिकुलर इशू, जो अगेन आपका न्यूज़पेपर से आएगा। तो इस तरीके से आपको सोसाइटी वाले पार्ट को प्रिपेयर करना है बहुत आराम से। जो 100 मार्क्स यूपीएससी पूछ रहा है, इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे आप अच्छे से आंसर कर लोगे। ठीक है, so now let's move on to the last and the most important topic of GS paper 1, that is geography. Geography UPSC 75 मार्क्स का on an average out of 250 मार्क्स हर साल पेपर में पूछता है, एंड इस सब्जेक्ट से टोटल 4 टॉपिक्स यूपीएससी ने सिलेबस में अपने मेंशन किए हुए हैं। We will start with the first one, which is the salient features of the world's फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ सारे सब टॉपिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर के जितने माइक्रो टॉपिक्स हैं, ओशियानोग्राफी वाला टॉपिक हो गया उसके माइक्रो टॉपिक्स हैं, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, इन सब के सारे माइक्रो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो आपका ये पूरा सिलेबस कवर करता है इजीली। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है ज्योग्राफी से, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे साउथ एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ कीवर्ड दे दिया है, विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हमें ये वाले एरियाज तो डेफिनेटली करने हैं। और इस वाले पोर्शन से अगर आप देखो तो यूपीएससी ने प्री 2025 से भी यहीं से इसी सिलेबस हेड से क्वेश्चन डायरेक्टली 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने मिनरल से रिलेटेड प्री में पूछ लिए थे। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंडर क्या क्या आता है वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है, फ्रॉम लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चरल, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, सो इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे हमें टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, दैट इज कि किस तरीके से मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, आईटी हो गया, कॉटन टेक्सटाइल यूपीएससी पूछ चुका है, टी, फिशिंग, एग्रो, एवरी ऑल अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, कैपिटल, लैंड, ये सब हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या है, एग्लोमरेशन क्या है, और यही पार्ट आपका जीएस पेपर 3 में भी कवर होता है। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आउट ऑफ 75 मार्क्स नियर अबाउट 45 मार्क्स यूपीएससी सिर्फ इस एक सिलेबस हेड से पूछता है क्वेश्चंस। दिस इज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक्स, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc., geographical features and their locational changes in critical geographical features, including the water bodies and ice caps, and in flora fauna effects of such changes. अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरा सिलेबस है ये आपका जीएस पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर करता है एंड ओवरलैप करता है एनवायरनमेंट के साथ भी।
ठीक, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो भी जियोफिजिकल फिनोमिनाज हैं, जितने भी अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, फैक्टर्स कॉजिंग द चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक द मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, जिस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। आपका पूरा फिर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बेसिकली अगर आप ज्योग्राफी के मेंस के सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो आपका प्री प्लस मेंस पूरा इंटीग्रेटेड वे में प्रॉपर्ली इन डेप्थ प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ बात करें तो ये देखो 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गेंजेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ इट में अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कैसे कर रहा है, ग्राउंड वाटर स्केर्सिटी जो होने लगी है गेंजेटिक वैली में। अब वहीं पे GS3 का 2019 का क्वेश्चन देखो, ये हमें इंपैक्ट बताना है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम द वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। जब आप इस फूड सिक्योरिटी वाली 2024 वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे तो उसके वे फॉरवर्ड में या अपने सजेशन में आप मेंशन करोगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें भी क्या चीज और बेटर हो सकती है, वो आपका ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है 2019 में। तो इस तरीके से इंटरलिंकेजेस आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी देखने को मिलेगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, ये तो सीधा डायरेक्ट रेपिटेशन है। 2024 में यूपीएससी ने फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो वहीं 2022 में जस्ट 2 इयर्स बैक GS3 के डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर यूपीएससी ने मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट पूछा है। देखो घुमा करके जो GS3 में पूछा है वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन GS1 में पूछा है। सो इसीलिए इंटरलिंकेजेस में बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ इस पूरी वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको अपने नोट्स को इस तरीके से ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक अंडर GS1, जब GS3 में जाओ और आपको लगता है कि आपने अपने नोट्स में ऑलरेडी उस सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो उसे अपने GS3 के नोट्स में भी ऐड ऑन करो। अब ज्योग्राफी को पढ़ना कहाँ से है, क्या क्या सोर्सेज उसके लिए रखनी है, तो देखो ये क्लास 11-12 की जो बेसिक 4 NCERTs हैं इनको आपको डेफिनेटली पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं लाइक आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया या आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक हो गया सिलेबस में, इसके लिए आपकी NCERT सफिशिएंट नहीं रहेगी। यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। या तो आप गूगल से इसको पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग के आप ये सीधे सिलेबस हेड्स डालो एंड स्टार्टिंग की 2 लिंक से प्रिपेयर करो, या फिर जो PMFIs की फिजिकल ज्योग्राफी की एक बुक आती है और एक ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की आती है, दिस इज ऑल्सो रियली वेरी गुड। यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर मेन्स, बिकॉज इसमें ना एक होता है ना कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में क्रिस्प वे में अच्छे से दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस GC लॉन्ग में आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये आपको पढ़नी जरूरी है। इसमें स्पेशली जो वेजिटेशन वाला पार्ट 2 है ना, इसको जरूर कवर कर लेना बिकॉज वो प्री में भी काम आता है। अगर मैं अप्रोच की बात करूँ ज्योग्राफी में, तो द बेसिक सिंपल फिनोमेना एंड द फंडामेंटल थिंग इन ज्योग्राफी इज दैट कमांड द कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर आपके वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स हैं, वो क्यों हैं, क्या उनके पीछे कॉजेज हैं, क्या उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, क्या आपका अपना सजेशन है, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसके साथ साथ लिखो, प्रिपेयर करो। तो इस तरीके से आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें पूरे GS1 के सिलेबस को पढ़ना है, क्या क्या एग्जैक्ट माइक्रो टॉपिक्स उसमें कवर करना है, ताकि हमें ये फियर ना रहे कि हमने सही राइट डायरेक्शन में GS1 की प्रिपरेशन की है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।